ایک ہمارے ساتھ ایکس ہندو جڑے ہیں. ایکس ہندو صاحب جی یار پہلے ہندو بتائیے. تھے آپ؟ ایکس ہندو ہوں. نہیں ہندو تھے کیا پہلے؟ ہاں ہمارے پوروج لوگ تھے. اچھا پوروج لوگ تھے، آپ نہیں پیدا ہوئے تھے نا ہندو. ہاں تو ابھی گھر واپسی ہونی ہے نا. گھر واپسی ہونی ہے مطلب؟ کیا بات ہے یار ہاں یہ ہمیشہ کا حصہ مطلب. کیا حال ہے ہاں یار یہ؟ میں ہم ایکسپٹ رہتے ہیں بہت سارے. یہ کس کے مائک سے، اسی کے مائک سے اتنا ساؤنڈ آ یار رہا ہے؟ کان سے خون نکالے گا یہ بندہ. فری تھنکر نہیں میوٹ یہ کر دو، فری تھنکر میوٹ کر دو. فری تھنکر کیا پرابلم ہے؟ ہاں بھائی بتاؤ. یار آپ ہندو پیدا ہوئے تھے؟ ہاں ہر انسان تو ہندو ہی پیدا ہوتا ہے. تو کیسا مسلمان ہے بھائی؟ ہاں ہندو پیدا نہیں ابھی کیا ہوتا ہو؟ ہے. تو ابھی مسلمان ہے؟ ابھی ابھی کیا؟ ہاں ابھی مسلمان ہوں. تو پھر انسان ہندو کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ قرآن کے اسی مطابق لیے کیا تو پیدا ہوتا ہے؟ قرآن کے مطابق فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور فطرت ہندوازم ہے؟ ہوں؟ فطرت ہندوازم ہے؟ ہندوازم میں سب ہندو پیدا ہوتا ہے. ہندو ہی تو ہے سب، پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب ہندو ہی ہے اصل میں. یار یہ کیا ہے ساحل، یہ کیا ہے یار، یہ کیا ہے بندہ؟ بھائی یہ کس کیا ہے؟ مدرسے میں پڑھتے ہو؟ مدرسے میں پڑھتا ہوں نہیں پڑھاتا ہوں. اچھا ایسا کر، ایسا سورہ کر. یاسین سنا دو بھائی، سورہ یاسین. سنا یاسین میں دوسری جگہ ہاں سے سنا رہا ہوں. دوسری سنائیے، جگہ سے؟ بسم اللہ. سنانے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مهجورا. اب کیا پوری تراویح پڑھاؤ وقدمنا. گے؟ تو آپ نے سنانے کے لیے کہا تو میں سنا رہا ہوں. تو رکو بھی تو صحیح. بتاؤ بھائی. میرے کو لگا ابھی تراویح کی پوری پہلی رکعت پڑھانے والے یہ. ابے بھائی ماری ہے چاہتا بھائی کیا ایک ہے؟ ہندو. بھائی چاہتا کیا ہے تو وہ بتا دے. میں چاہتا ہوں، میں اللہ کو چاہتا ہوں. اوکے تو جا یار اللہ کے ساتھ جا کے سو جا یار. ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہاں؟ ہم سے کیا چاہتا ہے بھائی؟ تم سے ہاں گالی سننا. نہیں میں نہیں سناتا گالی جب تک تو گالی نہیں دیتا. یار تم گالی دینے میں ایکسپرٹ ہو. نہیں میں تب دیتا ہوں جب کوئی اگلا دیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں کب تک چلتا ہے. اچھا آپ عالم ہے کیا ایک ہندو صاحب؟ ہاں بالکل. اچھا ایکس ہندو صاحب آپ کبھی ہندو تھے؟ نہیں تھے بولا نا پوروج لوگ ہندو آپ تھے. خود کبھی نہیں تھے؟ ہندو تو پیدا ہوتے ہیں ہر کوئی. اچھا ہندو ہے. مطلب کس لحاظ سے بنا ختنے کے پیدا ہوتے، اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ ہاں بنا ختنے کے، اور سب تو سناتنی ہے پوری دنیا والے. یار یہ کیسا مسلمان ہے یار. کاش ایسے اگر ہر مسلمان عالم ہو جائے تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی بھائی. یار ایک بھائی بات سن، تو ہاں مندر میں تعلیم دیتا ہے یا مدرسے میں دیتا ہے؟ میں مدرسے میں دیتا ہوں. یہ مدرسے کا کیا نام ہے؟ جے شری بھگوان؟ نہیں، نہیں اللہ اکبر.
नाम है अल्लाह। अच्छा, हनफी मदरसे में है एक सिंधु साहब, आप हनफी मदरसे में है या नहीं, अल्लाह के मदरसे में यानी है। भाई या, इतना सवाल मत करो यार। नहीं सिर्फ इतना बता दो, सलफी मदरसे में है, हनफी मदरसे में है, किस में है आप? मैं पक्का देवबंदी मदरसे में हूँ। कौन सी किताब है सुभान जो अल्लाह, जो मेन सुभान किताब है अल्लाह। हनफियों की, वो कौन सी है बता सकते हो? अरे उसने कहा देवबंदी मदरसे में है भाई। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, उसी का पूछ रहा हूँ मैं। अरे देवबंदी में हनफी है मेजोरिटी में यार, हाँ, वो उसमें सबसे मेन किताब कौन सी है कुरान हनफियों की? कुरान करीम। कुरान करीम, कुरान अरे करीम, फिका की कुरान बात कर रहा करीम। हूँ कुरान यार, करीम। फिका की बात कर रहा हाँ, हूँ, बुखारी फिका की शरीफ। बात कर। बुखारी नहीं फिर शरीफ। आप गलत है, हाँ, फिर गलत है, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं बिल्कुल सही बता रहा हूँ भाई। नहीं, हनफियों के इमाम अबू नजदीक हनीफा बुखारी शरीफ। रहमतुल्लाह हाँ हाँ इमाम हाँ अबू हाँ हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जितने मसाइल है सब हाँ। तो अहादीस से है ना। नहीं तो उनकी सही किताब हदीस कौन सी आती है है। जो उनकी तरफ मंसूब की जाती है, वो कौन सी किताब है? बहुत सारी किताब है, अल-अशबा वन नज़ाइर है, रस्मुल मुफ्ती है, हम्म बदाइउस सनाए है, कंजुद हम्म दकाइक है, अभी भी वो शरहुल नाम नहीं आ रहा बिकाया जो है। मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, तुम हिदाया के बारे में पूछ रहे हो। हाय 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 भाई, ये पक्के आलिम साहब ही है भाई, अब मैं यकीन हो गया, मैडम अब मैं पक्का मान सकता हूँ मैं। यकीन हो गया। यकीन हो गया, अभी यकीन हो गया। चलो भाई, खुदा पर यकीन आ जाए तुमको। नहीं, खुदा पे यकीन है, अल्लाह पे नहीं है। प्रॉब्लम डिफरेंट है। खुदा अल्लाह कुछ भी बोल लो। कैसे कुछ बोल ले, फिर आप बोल दे अच्छा जय कौन श्री सी राम। पीते हो? आप बोल दे जरा जय श्री राम। हाँ, आप बोल दे फिर जय श्री राम। नहीं तो फिर अल्लाह खुदा अगर कुछ भी है नहीं, तो बोल देना, क्या मसला है? जय श्री राम क्यों बोलूंगा, हमें उन पर ये नहीं है, तो फिर उनका अल्लाह खुदा अकीदा एक ही है तो फिर बोल देना, फिर मसला भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं भाई, क्या नहीं भाई? नहीं बोलूंगा। हाँ, क्यों? श्री राम ओम थे, कौन अच्छे थे? आदमी थे, मैं भगवान नहीं थे? उनकी इज्जत करता हूँ। भगवान नहीं थे? नहीं, हम भगवान नहीं मानते तो हम भगवान क्यों बोलेंगे? तो फिर भगवान किसको मानते हैं? भगवान किसको मानते हैं? भगवान वो है जिनके हाथ पैर नहीं है, जिनके जिनकी आंख हाथ नहीं, में टूटे हुए जिसके, वो भगवान होता है। इंसान जैसे, इंसान जैसे। जो इंसान जैसे हाथ जिसके टूटे हुए हों वो भगवान होता है। नहीं भाई, वो दूसरे लोगों का भगवान होता है, हमारा नहीं। अच्छा, मछली को हमारा भगवान कह तो रहे हैं, जय श्री मछली करते हैं आप, उसके हाथ नहीं नहीं, होते। भाई नहीं आपने कहा हाथ नहीं उन होंगे इंसानों जैसे, वो भगवान है, तो जय श्री मछली कर दें। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि ये लोग जो भगवान को इंसान की शक्ल में मानते हैं, हम उसको मानते नहीं। भाई जय श्री मछली कर हम देना यार, क्या मसला है? हम कहते हैं कि अनसीन है, मछली तो देखने वाली चीज है ना। अच्छा, अनसीन भी होना चाहिए, ये भी शर्त हो गई है? बिल्कुल गैब है, गैब। गैब, गैब शर्त है? अगर हाजिर हो जाए तो शर्त, हाजिर हो जाए तो भगवान भगवान नहीं रहता? देख ले, इंसान अगर देखे तो वो कहाँ से भगवान तो अगर है इस मोहम्मद दुनिया को मैं में? दिखा दूं कि आपको आपको बुखारी नहीं नहीं, सही है, आपने कहा था बुखारी को मानते हैं, कुरान के पास सबसे मेराज ऑथेंटिक की बुखारी, मैं और मैं आपको बुखारी में, अगर आपने भी बोला, आप झूठ नहीं अब बोल सकते, मैं आपको बुखारी में भी दिखा दूं कि मोहम्मद ने अल्लाह नहीं को भाई, देखा इंसानों के हाथों की तरह और इंसानों की उंगलियों की तरह। फिर भाईजान आपने भी बोला है, ये सारे आपकी हुज्जतें, मेरी नहीं है, और बुखारी को देखो आपने माना है, मैंने नहीं। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपको दिखा दूं, अब मुद्दे से हटना नहीं है, काफी मजाक हो गया, अब मुझे बताएं कि अगर मैं आपको दिखा दूं बुखारी शरीफ में कि अल्लाह के हाथ है और मोहम्मद ने अल्लाह को देखा अपनी आंखों से, और उसके हाथों को, उसके हाथ, अल्लाह के हाथ जो हैं वो मोहम्मद के सीने को टच किए और मोहम्मद के टिटीज ठंडे हो गए, अगर मैं ये वो चीज आपको मेराज, दिखा दूं वो तो फिर, मेराज की बात मेराज की बात नहीं है, मेराज की बात नहीं है, नहीं है मेराज की बात, तो इसी दुनिया की बात है, अगर मैं साबित कर दूं इसी दुनिया की बात है, क्या करेंगे? इस दुनिया में इस दुनिया में बुखारी से बढ़कर कुरान बुखारी शरीफ से, है। कुरान अबे डंकर अभी लईसा तूने कहा था कमिथली बुखारी को शै। मानता है। अबे उससे बढ़िया कुरान शरीफ है ना। अबे यार मुझे बुखारी नहीं को पता मानता कुरान हूँ, है कि नहीं है, तूने क्या बुखारी को मानता है, बात खत्म हो गई, बुखारी झूठा, बिल्कुल सच्चा। तो फिर जो बुखारी कहता है मानना।
बुखारी समझने के तुम्हारे पास सलाहियत नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास तो है ना, तुम समझा देना। पहले मान अगर मैं दिखा दूं अल्लाह के हाथ, फिर बुखारी पढ़ने पढ़ाने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि किसी उस्ताद के पास पढ़े। समझ में आई बात? बुखारी तुम क्या गया, पढ़ाओ? तू गया मेरा बच्चा, चल गया तू। बुखारी का Thank you, कुछ bye bye। नहीं समझ। साहिल का गेम ओवर हो गई यार, खत्म हो नहीं, गया इसका। अब जवाब नहीं दे पाओ। बाय बाय। जवाब क्या नहीं जवाब, तू तो चल। भाग गया, तू तो पहले शुरू चल। होते ही भाग गया, तू तो शुरू नहीं, होते ही भाग मैं गया, अभी तूने साबित कर दिया। बुखारी अब बुखारी अल्लाह तुम भी सेम नहीं समझते हुआ, हो? अब अल्लाह भी सेम चल नहीं हुआ भाई। सबका, अब सबका अल्लाह हाँ। भी सेम नहीं हुआ, ठीक है? अल्लाह भी बदल बुखारी के सुन ले लिए ना, अभी सुन ले, अभी मैंने 4 चीजें तेरी रिजेक्ट की हैं। सबका भगवान भी सेम तेरा रिजेक्ट हो गया, ठीक है? उसके अलावा ये भी अरे रिजेक्ट हो गया कि अल्लाह के हाथ होते हैं, उसके अलावा ये तो भी रिजेक्ट हो गया कि बुखारी अच्छी है और बुखारी सही है, और ये भी रिजेक्ट हो गया बुखारी कि बिल्कुल इंसानों सही। के समझने के लिए नहीं है, बुखारी ये डंगरों के समझने के लिए। बुखारी समझने के लिए ना 50 साल तक वो हाँ, 50 घिसना साल पड़ता तक। है। हाँ बस ठीक है, जा तू, तूने घीस तब लिया जा ना, चल जा घीस अपनी ठुसी। हाँ, मेरी तरफ बहुत से बाय घिस बाय। लिया। ले जी, साहिल हाँ। भाई अच्छा, खत्म हो गया, अब आप बात एक करें। मिनट एडम। अच्छा, एक्स हिंदू साहब, जी बताइए। आप एक संजीदगी के साथ जो है डिस्कशन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी मजाक मस्ती बहुत हो गई है, संजीदगी के बिल्कुल साथ करना आप चाहता डिस्कशन हूँ। करना चाहते हैं। ठीक है, इस्लाम, आप बताइए कि इस्लाम जो है वो यानी हमें इस्लाम क्यों कबूल करना चाहिए? इस्लाम जी बिल्कुल कबूल करना चाहिए। हर कोई तो मुसलमान है, पूरी दुनिया वाले। अगर अभी हिंदू बोल रहे थे, अभी नहीं, मुसलमान बना दिए। तो सनातनी और इस्लाम में कोई फर्क नहीं है ना। ओए अब होए हम होए, लोगों ने मतलब आप बदल लिया सनातनी अलग बात। मुसलमान है? आप सनातनी मुसलमान नहीं है? नहीं, सनातन धर्म में भी एक नहीं नहीं, ईश्वर को एक माना मिनट, जाता है। आप एक मिनट को, एक्स हिंदू साहब, अभी आपने कहा सनातन ही इस्लाम है ना? और है ना? तो इस्लाम आप, ही सनातन है। हाँ, तो आप सनातनी मुस्लिम है ना? बिल्कुल। यार अभी थोड़ी देर पहले नहीं बोल रहे थे, अब हाँ बोला। ठीक है, आप नहीं, एक सनातनी मुस्लिम है, ठीक है, इतना हम मान गए। ओके गाइस, एक नया फिरका आया है मार्केट में अभी, और वो है सनातनी मुस्लिम। ठीक है, ये एक नया फिरका मार्केट में आया है। अच्छा, अब ये बताइए कि इस्लाम क्यों कबूल करना चाहिए? इस्लाम, क्या अच्छाई है इस्लाम में? इस्लाम में क्या बुराई है आप बताइए। अगर हम लाइन अच्छाई लगा का दे अच्छाई। आपको, बुराइयों की लाइन लगा दे अभी, एक भी बुराई नहीं है। अच्छा, इस्लाम जो अल्लाह का लेकिन सुनना कॉन्सेप्ट, पड़ेगा, लेकिन हाँ सुनना सुनेंगे पड़ेगा। भाई, म्यूट कर बिल्कुल दीजिएगा, सुनेंगे। ये कीजिएगा, वो सब नहीं चलेगा। हाँ, तो एडम की बीच में तरह नहीं बोलना। हाँ सुनो, आप 5 मिनट बीच बोल में, लीजिएगा, मैं भी 5 मिनट बोलूंगा। अब अरे एक बात रुको बोलूंगा फिर। भाई, हाँ, देखो यही आपको ठीक। समझा रहा था कि आपने तकरीर नहीं करना है, आपने बीच में नहीं बोलना है, आपने यहाँ आपको वहाँ भी की बात तकलीफ नहीं नहीं करना है, आपने टॉपिक पे बात करना है, जो सवाल किया गया उसी से रिलेटेड आपको जवाब देना है। आपको ए पूछा गया, आप जेड बोलोगे तो फिर वैसा नहीं होगा, फिर हमें टोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ठीक नहीं है, नहीं, सुनिए, एक बात सुनिए। आप सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, मैं जवाब दूंगा। क्वेश्चन तो 2 लाइन में हो जाता है, और जवाब जो है 2 सफा लगता है, तो इस हिसाब से याद रखिएगा। चलिए आप बोलिए। जो जवाब देंगे उसमें अगर हमें ऐतराज होगा तो हम आपको टोकेंगे और उस पे पहले सवाल नहीं, करेंगे। जवाब में एतराज नहीं होता ना। क्यों नहीं होता है? यही तो मतलब आप गलत जो भी बात है। जवाब दे हमको मान लेना है? नहीं, आपको जवाब सुनना है, फिर जवाब बात पूरी हो जाएगी, फिर आप एतराज कीजिए। नहीं, तो बात पूरी आपको 2 होने मिनट देना दिया पड़ेगा। जाएगा। ठीक है, आपको 2 मिनट दिया जाएगा आपका जवाब देने के लिए। ठीक है, उस पे हम नहीं टोकेंगे आपको। उसके बाद फिर आपको हाँ, जो है, जो आपने जवाब दिया उस पे हम सवाल करेंगे। हाँ, ठीक है, और खासकर हाँ, एडम खामोश रहे। नहीं, ठीक ये है। आप शर्त नहीं लगा सकते, यहाँ पे आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते कि किसको खामोश रहना है, किसको नहीं खामोश रहना है। नहीं, आपको 2 मिनट दिए जाएंगे, सुन लो मेरी बात, आपको 2 मिनट दिए जाएंगे, आपको जो जवाब देना है उसमें आप दे सकते हो। ठीक है, हाँ ठीक है, इंटरप्ट नहीं जी, करना है। नहीं इंटरप्ट जी, नहीं करेंगे हम आपको, बिल्कुल फिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, इस्लाम जो खुदा का कॉन्सेप्ट देता है वही नॉनसेंसिकल है। क्यों?
हाँ, वो इस वजह से कि इस्लाम आपको कहता है कि जो आपका खुदा है, ठीक है, वो उसके हाथ पैर है, ठीक है, उसका चेहरा है, हाथ पैर है, नहीं है? नहीं, अच्छा, अगर हम आपको बता दे तो उसका वो चेहरा, ताबीर उसके है, हाथ पैर, इसकी वो आपको ताबीर दलील है। देना पड़ेगा कुरान से कि जब अल्लाह कह रहा है कि उसका चेहरा है, तो अल्लाह से आपको साबित करना पड़ेगा पहले कि उसका हाथों वो पे आ चेहरा जाए, नहीं है। पहले हाथों पे। चलिए हाथों पे आ जाते सब, ठीक है। देखिए, तफसीर पढ़ते हैं ना, नहीं, आपको तो कुरान से साबित करना पड़ेगा, ठीक है, चलिए कुरानी से बताऊंगा। हाँ, कि हाथ से मुराद हाथ नहीं है। नहीं है। हाँ, ठीक है। एडम, हाथ वाली कोई आयत निकालो। मैं ले आता हूँ, मैं सरकार ले आता हूँ कुरान यदुल्लाह चैप्टर मगलूल। नंबर, मैं नो मैं नो नो मैं वो पढ़ वाली के नहीं, सुना वो देता वाली नहीं, वो वाली नहीं चाहिए मुझे, वो वाली नहीं चाहिए। आपको किसने कहा हाँ। मैं आपको आपकी मर्जी की आयत दूंगा? नहीं, आपको किसने वो कहा? तो बताओ। नहीं, वही ना, तो चलो, मैं आयत दूंगा। हाथ दीजिए। ओके, अच्छा, जब आप नहीं बोल रहे हैं तो आप म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां से एको हो रहा है। ठीक है। ले सर पढ़े। पढ़े सर। भाईजान अरे अनम्यूट अनम्यूट कर। करके पढ़ो। हेलो, यार, मैंने आपको म्यूट नहीं किया है, आपने खुद को म्यूट किया है। अनम्यूट करके पढ़े आप। साहिल भाई पढ़ो ना, मुझे नजर नहीं आता है यहाँ से। हैं? मोबाइल पे हो ना, कंप्यूटर पे थोड़ी ना। पढ़ो मोबाइल ना पे ये जो तो। आप है, उसको आप देखिए, वहां पे एक फुल स्क्रीन करने का एक ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करिए और मोबाइल को घुमा लीजिए। हाँ, हाँ, आपको बड़ा बड़ा दिखना नजर आ जाएगा। नहीं हो रहा ना। एक मिनट। कहाँ फुल स्क्रीन हो रहा? नहीं हो रहा भाई, पता नहीं, हमको तो मालूम नहीं है इतना। अच्छा, कॉल या इब्लीसु मा मनाअका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदै। बियदैया अस्तकबरत अम हाँ, कुंत मिनल आलिम। हाँ। अचानक से दिखने लग गया। रट्टा लगाया हुआ है नहीं, मैं। अचानक से नहीं, पूरा याद है मुझे। हाँ, वो रट्टा लगाया हुआ ओए है होए पूरा। होए होए, क्या बात, क्या बात, जबरदस्त। हाँ जी, यहाँ पे सर एक हाथ की बात हुई है, 2 की, 3 की, 4 की, कितने हाथों की बात हुई है? पहले ये बता दें, फिर आगे चलिएगा। अपने हाथों से। नहीं, कितने, यहाँ पे कितने हाथों की बात हुई है, पहले ये बता दें। 2 हाथ। आपको अरबी का हाँ, 2 हाथों की बात हुई है यहाँ पे। चले सर, अब एक्सप्लेन करें आप। तो क्या मतलब? तो अल्लाह का हाथ। अच्छा, हाथ किसको कहते हाथ हैं? पाँव को कहते हैं सर। पहले हाथ का अरे, डेफिनेशन दीजिए। हाथ पाँव को कहते हैं ये सर। ये देखो, हाथ देखो। नहीं, नहीं देखा भाई, सीरियसली बात होनी चाहिए। तो यार हाँ, तो हाथ, ये क्या, ये हाथ नहीं है, ये सीरियसली है। हाँ? ये हाथ साहिल नहीं भाई है, दिखाओ हाथ। ये क्या है? अच्छा, वो जो दिखा रहे हैं अपने हाथ से, वो हाथ ये मुराद हाथ नहीं है। नहीं है। वो हाथ मुराद नहीं है। अच्छा, अल्लाह से यही आपसे मैं यही सवाल किया था कि हाथ मुराद नहीं है, ये आपको अल्लाह से साबित करना पड़ेगा। अल्लाह बोल रहा हूँ कि मैं, अल्लाह बोल रहा हो कि जब मैं यानी हाथ अपने बारे में कहूँ तो उससे मुराद हाथ नहीं है। प्लीज एक आयत पेश करें आदमी यानी साहब। कुरान से साबित करना है कि अल्लाह का हाथ नहीं है, यही है ना? नहीं यहाँ पे, नहीं, हाँ, यहाँ पे अल्लाह मियाँ क्या फरमा रहा है, देखो, हम कॉन्टेक्स्ट की अगर आप बात करो तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्लियर है। जो आयत आप देने लगे थे ना, मुझे पता है वहां पे आप जलेबी बना सकते थे, इसलिए मैं उस आयत में नहीं गया। ठीक है, चलिए आप इसी अगर में। सुन ले, अब जो आप सुन ले पूरा, फिर आप हुज्जत तमाम दीजिएगा 2 मिनट में। मैं भी 2 मिनट भी यूज कर लूंगा ना, मैं 1 मिनट कर लेता हूँ। चले, यहाँ पे अल्लाह एक्सप्लिसिटली कह रहा है कि अल्लाह कहता है, किसको कह रहा है? इब्लीस को कह रहा है, हेलो डंगर, सजदा कर, तूने क्यों नहीं किया एक ऐसी तखलीक के सामने जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। ठीक है, इसका मतलब है शैतानों को अपने हाथों से नहीं बनाया था अल्लाह ने, फरिश्तों को अपने हाथों से नहीं बनाया था,
शैतानों और फरिश्तों को अल्लाह ने अपनी कुदरत से जरूर बनाया होगा, हाथों से नहीं बनाया। आप इसको पावर के रमजे में भी, ताकत के रमजे में भी नहीं ले सकते, कुदरत के रमजे में भी नहीं ले सकते, क्योंकि फरिश्ते तख्लीक हो चुके हुए हैं, जिन तख्लीक हो चुके हुए हैं। यहाँ पे अल्लाह एक्सप्लिसिटली बोल रहा है जिनों को, अबलीस जिन को, हेलो भाई डंगर सजदा क्यों नहीं किया तूने? दो इनको मौका दे सर अब इनको। देखिए कुरान शरीफ में एक आयत है, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह जैसी कोई चीज नहीं है। कुरान शरीफ की आयत है, ला तुदरिकुहुल अब्सार, उसको आंखें नहीं देख सकती। कुरान शरीफ की आयत है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह जमीन आसमान का नूर है। तो ये जो आयतें हैं, इन आयतों को और इन आपने जो आयत पढ़ी है, इस आयत के बारे में उलमा ने लिखा है, जब अल्लाह जैसी कोई चीज है ही नहीं, तो हम दुनिया में जिसको हाथ समझ रहे हैं वो हाथ अल्लाह का नहीं है, हम जिसको चेहरा समझ रहे हैं वो चेहरा अल्लाह का नहीं है। और उसकी वजह यह है कि अगर हम अल्लाह का हाथ मानेंगे तो वो एक जगह इनका में 2 होगी, मिनट नोट डाउन हो रहा है क्या एडम? करने दे। वो एक जगह में होगी, और अल्लाह जगह से पाक है, समझ रहे हैं? तो इसलिए अल्लाह का हाथ भी नहीं है, अल्लाह की आंख भी नहीं है, अल्लाह यानी हम जैसी, आप ये अल्लाह की आंख उनकी शान के मुताबिक है, अल्लाह का हाथ उनकी शान के मुताबिक है। बस खत्म हो गया जी, थैंक यू, एंड ऑफ डिस्कशन। सो अल्लाह के हाथ हैं, वो कैसे हैं ये लेकिन हमें नहीं हम मालूम, जैसे जो कैसे हैं वो हमें नहीं मालूम, लेकिन उसके हाथ हैं। हमारे इंसानों है। जैसे हाथ नहीं है, लेकिन हैं। ये आपने कह दिया, बात हमको खत्म। लईसा दिख नहीं कमिस्लिही रहे शै लेकिन है। है, हाँ। कैसे है ये नहीं हमें पता, ठीक है, हम्म। लेकिन हाथ तो है ना, बात खत्म हो गई। दो है वो भी, हाँ। चार नहीं है। और इन्होंने अल्लाह कहता है मैंने इन्होंने दोनों कहा हाथों था से कि बनाया। अल्लाह के हाथ नहीं है, इन्होंने तो कहा अल्लाह के अल्लाह हाथ, के हाथ नहीं है। इन्होंने लास्ट स्टेटमेंट में अपनी ही लास्ट स्टेटमेंट में, हुज्जत के लास्ट में एग्री कर दिया कि हैं, लेकिन हमें नहीं पता कैसे हैं, तो एग्री हो गई बात। एग्जैक्टली। हाथ नहीं है नहीं, मेरी जी बात एक्सेप्ट सुनिए ना। सर, अभी आपने हाँ। बोला है कि हाँ हाथ है, लेकिन कैसे है ये नहीं हमें पता, ये आपने भी बोला, लाइव है। नहीं, सुनिए सुनिए, मेरा नहीं कहने का सुनिए, मतलब नहीं ये है कि आप जो नहीं नहीं, हाथ एक से रुके, समझ, एक से रुके। एक दफा सेंटेंस बोलने के इसीलिए बाद उसे आप कहेंगे आप मेरे बोलने कहने का मतलब है, ये क्या तरीका है भाई? आप बोलने नहीं देंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? क्योंकि आपने आपको बोल मैंने लिया है। आपको मैंने पहले कहा ना कि अल्लाह का हाथ नहीं है। हम पहले पूछा हाथ के डेफिनेशन बताओ, हाथ किसे कहते हैं? तो साहिल भाई ने अपना हाथ दिखा दिया, तो मैंने कहा ये वाला हाथ अल्लाह का नहीं है। कौन सा किसने समझ वाला? रहे? कहा है साहिल का हाथ अल्लाह का है? हाँ। ये जो किसने इंसान कहा? का जो हाथ दिखाया गया, इसलिए तो मैंने पूछा हाथ किसको कहते हैं। तो किसने कहा है तो साहिल का हाथ आपने अल्लाह तो का है? साहिल का नहीं, साहिल ने जैसे, साहिल भाई ने तो जैसे किसने हाथ कहा कि दिखाया, इंसानों जैसा हाथ है अल्लाह का? हाँ तो हमने नहीं इंसान कहा। जैसा नहीं, नहीं है, इंसान नहीं जैसा है, नहीं है। नहीं है, हाँ है ना, इंसान, लेकिन इंसान जैसा नहीं, पूरी नहीं दुनिया में है, कोई भी चीज पूरी ऐसी नहीं है। दुनिया जैसा नहीं है, एलियन है अल्लाह, जिसका किसी को नहीं पता, एलियन है। नहीं, एलियन की बात अलग हो गई, चलो एलियन किसे कहते हैं? भाई, वो साइंस वाली बात मुझे मालूम नहीं, एलियन किसे कहते हैं ना? वो साइंस वाली बात मुझे मालूम नहीं है, बता रहा हूँ। एलियन किस में है, किस गिरोह में है, किस में नहीं है, किस प्लेनेट में है, कहाँ से अमेरिका में आ रहा है या नहीं, वो नहीं न्यूज नहीं, नेशन एलियन वाले एक न्यूज। एलियन एक ऐसी चीज होती है जिसका हमको पता नहीं होता है। ओए होए होए होए, क्या बात, क्या बात। ठीक है, एलियन एक एक्रोनिम है, एडोलेसेंट लिविंग इन इटर्नल न्यूनेस। हमें नहीं पता उसका, कोई न्यू ऑब्जेक्ट है, कोई न्यू चीज है, हमें नहीं पता उसका है, कैसा है पता नहीं, कैसा चेहरा है पता नहीं, कैसे हाथ है पता नहीं, कैसी टांगे हैं पता नहीं, पता नहीं है। अल्लाह एक एलियन है। नहीं भाई, तुम्हारे नाम से क्यों पुकारूंगा, मेरा जो नाम है वही अच्छा है ना। नहीं, अल्लाह का नाम अल्लाह ही रहेगा, लेकिन अल्लाह को अगर हम हाँ। क्लासिफाई करें, देखो इंसानों को अल्लाह क्लासिफाई वो किया है, ह्यूमन बीइंग्स में। इस्लाम में जो है डेफिनेशन ये है कि अल्लाह वो जात है जो उन एलियन है। जैसी कोई चीज हाँ ना, दुनिया तो में नहीं एलियन है ना, है। यही तो एलियन की डेफिनेशन है।
अल्लाह भाई एक एलियन एलियन है। अल्लाह वगैरह तुम एलियन है, मान लो, हमको मानने के लिए मतलब अल्लाह नहीं। एलियन है, अल्लाह आदम, को ये कहना चाह एलियन, रहे हैं। एलियन वगैरह क्यों कहूंगा, वो दूसरे प्लेनेट में रहता है, हमारे इसमें नहीं नहीं। यार नहीं, अल्लाह अरे तो हर अरे जगह। प्लेनेट का कोई ताल्लुक नहीं है एलियन एलियन टर्मिनोलॉजी के साथ। मालूम नहीं प्लेनेट भाई, का कोई साइंस ताल्लुक की नहीं है। बात मुझे बता, वो न्यूज नेशन वाले से मालूम कर लेना भाई। अरे मैं तुम बोल तो रहा हूँ जाते हो, ना, अल्लाह एक एलियन है। तो तुम बोलो ना। बोला तो है अल्लाह एक एलियन तुमको है, और तो बोला है। बोला तो है। तुमको बोलने से कौन मना कर रहा यार तुम क्या हो है? हाँ, यार। अल्लाह यार, एक नया जो हमारे सनातनी मुस्लिम भाई है, एक नया फिरका है, और इन्होंने आज साबित किया कि अल्लाह ही एलियन है, यानी एलियन ही अल्लाह है ना। ये बात तो साबित हो गई, लेकिन ये बात भी साबित हो गई उनकी बात से, उन्होंने खुद कॉन्ट्रडिक्ट किया है कि अल्लाह के हाथ है लेकिन हमारे जैसे हाथ नहीं है। यानी हमारी 5 उंगली हो सकता है, अल्लाह की जो है वो 10 उंगलियां हो एक हाथ में, या 15 उंगलियां हो, जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन उसके हाथ तो है। तो अब जो पहला जो हमारा एतराज था कि अल्लाह जो है उसके हाथ है, आ, एक एक खुदा के हाथ है, तो वो खुदा कैसे हो सकता है? तो इस बात के हिसाब से अल्लाह खुदा नहीं हो सकता है। क्या कहते हो एडम? सर साबित हो गया, साबित हो गया। अब मेरा इनसे दूसरा सवाल है, देखें, हम्म क्या अल्लाह किसी भी चीज का रूप धारण कर सकता है? अच्छा, इनको अनम्यूट करना पड़ेगा, एक मिनट को। हेलो, जी, क्या अल्लाह किसी भी चीज का रूप धारण कर सकता है? हाँ नहीं, वो कॉन्सेप्ट हमारे मजहब में नहीं है। वो यानी कि जो अल्लाह, ब्रह्मा की शक्ल में आ गए, विष्णु हम्म, की शक्ल में आ हम्म, हम्म, गए, वो हमारा इसमें नहीं है। नहीं नहीं, तो इसका मतलब है अल्लाह लिमिटेड है हमारा अपनी हमारा जो ये एबिलिटीज के है, अंदर। अल्लाह अपनी एबिलिटीज में लिमिटेड है। नहीं नहीं, लिमिट नहीं है, अभी आपने कहा वो एक काम नहीं कर अनलिमिट सकता। है। हम्म? अभी आपने बताया कि दुनिया में एक ऐसा काम है जो अल्लाह नहीं कर सकता, यानी कि वो रूप धारण नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है अल्लाह लिमिटेड है अपनी एबिलिटीज के नहीं अंदर। नहीं नहीं, किसी आदमी से अगर कहा जाए कि एक आदमी पढ़ा लिखा है, हम्म, तो उससे कहा जाए कि तुम सब कुछ कर सकते हो, बोला हाँ हम कर सकते हैं, तो तुम जाहिल मान के दिखाओ, तो वो जाहिल कैसे बनेगा? वो तो पढ़ा लिखा है, वो तो मूर्ख कैसे बनेगा? जाहिल बनने की तो एक्टिंग ये कर कह सकता दो ना। भाई, ये कह दो कि भाई वो उसके अंदर एबिलिटी नहीं है जाहिल बनने की, ये तो बेवकूफ वाली बात भाई हो वो गई तो ना। इंसान है ना, इंसान लिमिटेड होता है अपनी एबिलिटीज के अंदर। नहीं अल्लाह नहीं, तो मैं एक अनलिमिटेड है बात ना अपनी बता रहा हूँ, एबिलिटीज में। मैं एक बात बता रहा हूँ कि इंसान क्योंकि इंसान के को साथ आप अगर कंपेयर इस कैसे कर तरह, सकते हो? इंसान देखो, इंसान अपनी हाँ, एबिलिटीज में लिमिटेड है कि नहीं? तो अल्लाह सुपर पावर है इंसान से भी, तो उनके बारे में अगर कहा जाए कि वो मूर्ख नहीं बन सकते, तो ये तो खुद मूर्ख वाली बात है। तो यानी कि आपके मुताबिक अल्लाह जो है वो सिर्फ सुपर पावर है एक पढ़े लिखे अपनी। आदमी से अगर कहा जाए कि तुम मूर्ख नहीं बन सकते हो, ये कोई बात हुई? सर अरे सवाल भाई वो सुने, क्यों मूर्ख बनेगा? सर सवाल सुने, सर सवाल सुने, सवाल सुने। इंसान जो होता है ना, वो लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं है। हाँ अल्लाह अनलिमिटेड है, मानते हो? हाँ बिल्कुल। और अगर अनलिमिटेड पावर कोई ऐसा काम कर सके जो वो नहीं कर सकता, इसका मतलब है वो अपनी कैपेबिलिटी में लिमिटेड है। नहीं, वो करने की क्या जरूरत है? एक भाई एडुकेटेड को अल्लाह, अगर, अल्लाह रूप धारण कर सकता है कि नहीं? अगर नहीं कर सकता तो लिमिटेड है भाई, जरूरत की बात नहीं है। नहीं, मैंने रूप पूछा धारण कर करने सकते की कि क्या नहीं? जरूरत है? रूप धारण करने की क्या जरूरत है? हो या ना हो, कर सकता है कि नहीं? अल्लाह तो हर कुछ कर सकता है, लेकिन अल्लाह को करने की क्या जरूरत है? अभी आपने कहा नहीं कर सकता रूप धारण, अभी आपने कहा मूर्ख नहीं बन सकता। नहीं नहीं, वो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला रूप धारण नहीं करते हैं। यार साहिल मुझे एक बात बता यार, बात बात यार ये समझा बार बार करो पहले एक बात तुम। करने के बाद अपनी बात से बदल क्यों जाता है यार ये? कॉन्ट्रडिक्ट। क्या क्या कितने पहले कुछ कहता बदलता है फिर कुछ नहीं कहता है यार, क्या चक्कर क्या है इसके साथ? इसको खुद यार, नहीं पता है क्या कॉन्ट्रडिक्ट बोल रहा करते है। हैं भाई। तुम लोग जो है ना सवाल सिर्फ बात इधर उधर घुमाते हो। हर हम लोग कोई के घुमाते हैं। बात कहने का मतलब होता है ना।
हर कोई को कहने का मतलब होता है, जो कुछ भी कहता है क्या तो मतलब? पहले कहो फिर उसके बाद मतलब कुछ और रहता है, जो कहते हो उसके बाद मतलब उसका ऑपोजिट रहता है। क्या चक्कर है? हम तो इंसान है ना, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम एक बात में एक ही मर्तबा बोले और उस बात को समझा दे और सब कुछ मतलब भी हो जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं। सेंटेंस बोलने के बाद बदलते हो तुम? नहीं, वो तो हर कोई चलो दोबारा से मंत्री लोग पूछते भी हैं, बोलते हैं। क्या अल्लाह रूप धारण कर सकता है? अल्लाह रूप धारण करेंगे क्यों, पहले बताओ। कर सकता है कि नहीं? नहीं करेंगे क्यों, पहले बताओ। इररिलेवेंट, कर सकता है कि नहीं? मैंने तो तुमको मिसाल दी है यार, तुम समझते नहीं। एक जाहिल एक पढ़े लिखे आदमी से कह रहे हो कि तुम अनपढ़ बन सकते हो कि नहीं। फिर इंसानों की बात, अल्लाह को इंसानों से कंपेयर करना शुरू कर दूं, अल्लाह के हाथ इंसानों जैसे बना दूं? यार इंसानों से तो मिसाल तो फिर दी जा कंपेयर भी सकती नहीं है। कर सकते, फिर कंपेयर भी नहीं कर सकते अल्लाह से। तो मुझे ये चलो बताओ, ये टॉपिक, मुझे ये ये बताओ अल्लाह बात रूप धारण कर सकता है कि नहीं, ये बताओ। अल्लाह रूप धारण नहीं करते हैं, नहीं कर सकता ना? नहीं करते। कर सकने की बात अलग है। कहाँ लिखा है कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दिखाओ, दिखाओ कहाँ इस्लाम लिखा का है, अकीदा है, दिखाओ कहाँ लिखा है, कहाँ कुरान में कहाँ लिखा है? इस्लाम का अकीदा है, ला तुदरिकुल अबसार, क्या लिखा है? ये कुरान में आंखें कहाँ है? उसको नहीं देख सकती है। रूप धारण आंखें, जब करेंगे तो आंखें देख लेगी ना। आंखें देखी अल्लाह ने? अल्लाह को देखा लोगों ने? क़यामत के दिन भी देखेंगे। क़यामत के दिन देखेंगे, वो दुनिया से परे है ना। क्या मतलब? और अल्लाह को देखा जा सकता है ना, फिजिकल ऑब्जेक्ट है ना अल्लाह। नहीं, वहाँ अल्लाह को जरूर देखा, रुयत बारी होगी, वो तो है, कुरान शरीफ में है। तो फिर क्या मरने के बाद अल्लाह अल्लाह का फिजिकल है या दीदार होगा। नहीं? अल्लाह फिजिकल हुआ ना, इसका मतलब है। नहीं, वो इस वर्ल्ड की बात नहीं है, भाई वो मरने के बाद। अब किसी भी वर्ल्ड में तो देखो, मरने लिमिटेड के बाद जो है। है दुनिया ऐसी नहीं रहेगी या रहेगी, वो अल्लाह को मालूम है ना। अरे डज नॉट मैटर, जैसी भी रहे, फिजिकल है ना अल्लाह, वही देखोगे ना। नहीं, फिजिकल है या नहीं है वो उस वक्त पता चलेगा जब हमारी मौत आ जाएगी। उससे पहले हम कैसे कह सकते हैं। लिखा हुआ है ना, देखोगे, अगर देखोगे तो फिजिकल होगा तो देखोगे ना, नहीं तो नहीं देख सकते। अरे भाई, उस वक्त हमारी आंख ऐसी होगी या नहीं, वो अल्लाह को मालूम अरे है। जैसी भी होगी, फिजिकल होगा तो देखोगे ना, हवा नहीं देख सकते ना। नहीं, वो उस वक्त की बात अरे है, यार। उस वक्त फिजिकल होगी या नहीं, अल्लाह की जात फिजिकल होगी या नहीं, वो अरे अल्लाह को कैसे मालूम नहीं है। फिजिकल होगी? जब आपने वहां पे एवर लास्टिंग सेक्स वर्जन के साथ सेक्स करना है तो फिजिकल ऑब्जेक्ट आपका भी होगा ना। तो फिर उसको अल्लाह को जब देखेंगे तो अल्लाह भी फिजिकल होगा ना। हमारा होगा, वो आखिरत की बात है। आखिरत में हमारा होगा ना फिजिकल। आखिरत के बारे हाँ में तो हाँ हम बितफसील नहीं बता सकते। हाँ हाँ, लेकिन फिजिकल बा- आप तो फिजिकल होगे ना। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बता कर गया है कि फिजिकल होगा या नहीं, इतना आप डिटेल। भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो बताया ना कि उसे देखोगे, देखोगे तो उसका फिजिकल होना जरूरी है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया हमने उसको मान लिया, भाई सीधी सी बात। अंधभक्त, ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा हूँ। अंधभक्त नहीं, बिल्कुल अंधभक्त हूँ, इस सिलसिले में कोई ओए बात होए नहीं। होए 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 होए। तो हाँ, मामला ही खत्म है ना फिर। अंधभक्त, हम तो यही हमेशा आपको बताना चाहते हैं कि आप एक अंधभक्त और एक अंधविश्वासी होते हो मुसलमान। नहीं, अंधविश्वासी नहीं होते हैं। तो क्या आपको है ये? लगता है अंधभक्त है, आपको लगता है अंधभक्त है, अंधविश्वासी नहीं है आप? बिल्कुल नहीं हो। अच्छा बताइए, लेकिन अंधविश्वासी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो मिनट, एक कह मिनट, दिया वो आखिरी बात है, हाँ वही क्या कह रहा हूँ, वही। अच्छा, वही खुद की आखिरी बात बात तो है। ये इंसान कॉन्ट्रडिक्ट करते रहता है यार। आप 34 सोचो। बजे की है यार। नहीं भाई, अच्छा एक जो मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट, मेरे को एक बात बताओ। जो हरा रसूलुल्लाह, चश्मा पहने। ओ हाँ बोलिए। आलिम साहब सुनो, हाँ मैं आपको बोलिए। म्यूट कर रहा हूँ यार, नहीं तो सर दर्द कर दोगे आप। रसूलुल्लाह मेराज के वक्त 7 आसमान पे जाके आए, ठीक सात है, आसमान क्रॉस करके। कुछ ही पल में, ठीक है, कुछ ही पल में अल्लाह से मिलके आए। आप इसको साबित कर सकते हो साइंटिफिकली या लॉजिकली? हेलो, क्या आप इसको साबित कर सकते हो लॉजिकली या साइंटिफिकली? हेलो, अरे क्या हुआ, चला गया इंटरनेट? हेलो, हेलो। हाँ सुन रहे हैं, गया। आज सुन नहीं रहे हैं सुन हम। रहे हैं।
سائنس تو ابھی تو اتنی ترقی نہیں کی ہے جتنی کی ہے، تو جہاں تک تو مجھے رسول اللہ کے جانکاری ہے، زمانے میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک ایسا یان تھا، انتریان کہتے ہیں اس کو، انتریان ہی کہتے ہیں نا یار، جو اسپیس میں جاتی ہے، اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس ایک ایسا انتریان تھا جس سے وہ کچھ ہی پل میں 7 آسمان کے اوپر جا کے اللہ سے مل کے وہ پورا معاملہ کر کے ریٹرن بھی آ گئے تھے. بالکل وہ اللہ کی طرف سے سبحان بھیجا ہوا اللہ، تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی کے لیے، بھائی کی عقل کے لیے تالی ہو جائے. یعنی رسول اللہ کے پاس سائنٹیفک ٹیکنالوجی تھی. اچھا ایک ارے بھائی ٹیکنالوجی اور دیکھتے ہیں، سائنٹیفک ایک ٹیکنالوجی، ٹیکنالوجی کی کیا انترکش ضرورت یان. ہے؟ ایک ٹیکنالوجی اور دیکھتے ہیں. یار آپ کو پتا ہے سلمان صاحب کا واقعہ؟ سن لو تم انسان ہو تو انسان کے حساب سے سوچتے ہو، ہاں یہ اچھا آپ کیسے سوچتے ہو؟ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں تو وہ اللہ کے رسول ہیں ہاں تو رسول اللہ کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے نا. ایگزیکٹلی وہ بالکل. ممکن چیز جو ہے اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے ہو، آپ نے دیکھا نہیں ہے، بس آپ کا ایمان ہے، آپ کا بس وشواس ہے اس پہ. جیسے حضرت ابو بکر کا تھا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی ایک شخص کہتا ہے کہ وہ کچھ ہی پل میں یہاں سے وہاں جا کے آیا، پھر وہاں سے آسمان جا کے آیا، تو انہوں نے کہا کس نے کہا؟ تو جب وہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا جو دوست ہے وہ ایسا کہتا ہے. تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر محمد نے ایسا کہا ہے تو سچ کہا ہے، کیونکہ ان کا ایمان تھا. تو اسی طریقے سے آپ کا بھی بس ایمان ہے، اس وجہ سے آپ مان رہے ہیں نا کہ کیونکہ وہ رسول اللہ تھے تو جا کے آ سکتے تھے. صحیح؟ سبحان اللہ، سنو سبحان اللہ، بھائی، سبحان اللہ. ساتھی ہے ابو بکر، اب ساتھی نے ایسا کیوں ایمان رکھ لیا؟ کیوں کیسے ایسا ہاں اندھ بھکت ہوگا؟ ہائے ضرور ہائے انہوں ہائے نے ہائے ان اندھ کی سچائی وشواسی، کو دیکھا. ہائے ہائے اندھ ہائے. وشواسی نہیں، سچائی نہیں، اندھ اندھ وشواسی. وشواسی آپ نہیں. بھی اندھ وشواسی ہو، سنو میری بات، آپ بھی اندھ وشواسی ہو ہر ایک معاملے میں، اور مسلمان ہوتا ہی اندھ وشواسی ہے، اور ہم بار بار یہ ثابت کرتے ہیں. اور کئی سارے لوگ جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ ہاں ہم اندھ وشواسی، ہم ثابت نہیں کر سکتے. رسول اللہ کی معراج کی جو ٹرپ تھی، اب پتہ نہیں کلیئر ٹرپ سے کروایا تھا انہوں نے بک، یا پھر کیا کہتے ہیں اس کو، گوئی بیبو سے کروایا تھا، کدھر سے ٹرپ انہوں نے وہ بک کیا تھا وہ پتہ نہیں، لیکن جو ان کی ٹرپ تھی معراج والی، اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے ہو. اس پہ آپ کو وشواس کرنا ہے، یقین کرنا ہے. اور جو چیز ثابت نہیں کر سکتے پھر بھی آپ یقین کرتے ہو، اسی کو اندھ وشواسی کہتے ہیں. آپ اندھ وشواسی ہو اندھ مولانا صاحب. وشواسی نہیں، اندھ وشواسی اچھا نہیں ہے. ہاں، وہ پھر مکہ ثابت والوں کریے، نے، رسول ہاں، اللہ کی ٹرپ ثابت کریے. جب صبح انہوں نے یہ بات کہی تو مکہ والوں نے پوچھا کہ اس کے وہ جو بیت المقدس میں آپ نے نماز پڑھائی تو اس کے کتنے دروازے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے بتا دیا تھا. حالانکہ کتنے تھے؟ کبھی بھی آپ کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ وہ جتنے بھی تھے کتنے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا بیت المقدس. وہ تو ابھی تک بنی بھی نہیں تو ہوئی تھی. سنو وہ تو محمد کے مرنے کے بعد بنی تھی. سن لو بھائی یار. بھائی وہی تو کہہ رہا ہوں، ایک وہ تو آدمی محمد کے مرنے دعویٰ کے کر بعد رہا، جمی تھی. ایک آدمی دعویٰ کر رہا کہ میں دلی گیا تھا. اب دوسرے گاؤں والے پوچھ رہے ہیں کہ تو دلی گیا تھا تو بتا دلی میں کیا کیا ہے. تو اگر وہ یہاں سے بتا دے تو گاؤں والوں کو یقین آئے گا کہ نہیں؟ جب کہ گاؤں ہاں والے بھی بھائی وہ وہاں تو نہیں گئے تھے، جب گاؤں میں سے بھی کوئی دلی نہیں گیا اور کوئی بھی دلی نہیں گیا، تو کسی گاؤں والے کو کیسے پتہ لگے گا تو جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں؟ نہیں، اور گاؤں دوسرا والے کہ یہ جاتے تھے نا انسان بیت کبھی جا کے آیا المقدس. ہو. نہیں سنو میری بات، ہو سکتا ہے نا کہ یہ انسان جا کے آیا ہو، کیونکہ رسول اللہ جو ہے وہ کئی ٹرپ مارے ہیں. سودا، یہ کیا نام ہے ان کا، خدیجہ جو ہے ان کا ارے بزنس ساحل، وہ کرنے کے لیے. ہاں ساحل ایک سیکنڈ، مسجد اقصیٰ تو بنی نہیں ہوئی ابھی. وہ ہاں تو چلو محمد اس کے پہ ان مرنے سے کے 6 سال بعد ڈسکشن کر لو. بنی تھی. نمبر 1. نمبر دوسری بات، کتنے دروازے تھے؟ ابے جو محمد نے دروازے بتائے اس کے مطابق بنا لیے ہوں گے بعد میں دروازے. مسجد اقصیٰ تو تھی ہی نہیں تب. نہیں کیا چیز مسجد تھی؟ اقصیٰ تھی، مسجد اقصیٰ تھی ثابت بھائی. کرو. کوئی ایک ہسٹوریکل ایویڈنس دے دے مسجد ثابت اقصیٰ کے ہونے کا. یار ثابت کرو.
وہ جو ثابت کرو 17 مہینہ نماز پڑھے تھے بیت المقدس کی ارے طرف رک کر کے. when did یار مسجد ہاں یار الاقصی built ہاں تو مسجد اقصی نہیں تھی. क्वेश्चन आप बोलो एडम, फिर इनको जवाब देने का मौका देता हूँ. مسجد اقصی کس سن میں بنی تھی ذرا بتا دیں مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا. اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. کس سن کے بعد 4100 سال پہلے. ابے وہ ہاں. ٹیمپل ہے یہ دیکھیے دیکھ میں دکھاتا ہوں میرا پیارا بچہ ارے یار میں تم دکھاتا وہ ہوں. ساحل تصویر دکھا کے کیا یہ فائدہ. ذرا یہ ذرا اسکرین دکھائیں میری یہ لے یہ اسکرین دکھائیں ہم. اوکے یہ جناب آپ کے پاس ہے مسجد اقصی ٹاپ پہ یہ پہاڑی کی ٹاپ پہ ہے مسجد الاقصی ٹھیک ہے یہ مسجد اقصی ہے یہ آپ کا ہے ڈوم آف دی روک بنا 705 کے اندر 705 عیسوی میں مسجد اقصی بنی محمد مراد 632 میں سب سے پہلے جب اس پہ اٹیک کیا یہاں پہ مسجد اقصی بنائی کب بنائی 637 میں 637 کے اندر جو ٹیمپل کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹیمپل یہاں سے نیچے ہے کہیں پہ کدھر ہے یار جیروسلم ٹیمپل ایک سیکنڈ یہ مسجد اقصی موسٹ ڈائریکشن لیتے ہیں اس کی ٹیمپل کیا ہے یار ٹیمپل ماؤنٹ جیروسلم کدھر ہے نہیں یار کدھر ہے ٹیمپل ماؤنٹ ٹیمپل کدھر ہے یار ٹیمپل نیچے ہے البتہ یہ مجھے پتا ہے کدھر ہے دب لیتے ہیں یہیں پہ کہیں ہونا چاہیے نیچے 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے ان دونوں کے درمیان یہ دیکھو یہ ویسٹ وال ہے نا نیچے والی سائڈ پہ یہ ویسٹ وال ہے نیچے اور اوپر مسجد الاقصی ہے تو ٹیمپل یہاں پہ کہیں پہ نیچے ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں کہ مسجد اقصی میں محمد کیسے چلا گیا جبکہ وہ بنی نہیں ہوئی تھی بتائیں ذرا بنی ہوئی نہیں تھی تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے. میرے پاس دلیل ہے میرے بخاری پاس کی یہ حدیث. دلیل ہے کہ سارے کے سارے ہسٹورین لکھ رہے ہیں کہ مسجد اقصی کب بنی اس کو کلک کرو یہ کلک کیا ارے یار اس میں گئے اس میں کلک ہسٹورین کو کیا پتا ہے. ہسٹورین سارے होय پاگل होय بچے होय 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 ان کو کیا پتا ہے. ان کے پاس अरे बाप रे बाप यादी बोल रहा है हिस्टोरियन को क्या पता है. मैं मानूंगा रसूलुल्लाह की, मैं मानूंगा बुखारी की. इसी वजह से हम अंधविश्वासी आपको कह रहे हैं कि आपके पास आपके अलावा बाहर से कोई एक्सटर्नल कोई सबूत आपके पास नहीं है, इसीलिए आप अंधविश्वासी है. सुन लो मौलाना साहब. ہاں بھائی سن لو ایک بات. جیسے کہ کسی ہسٹورین نے کہہ دیا کہ یہاں کے کون شاہجہان بادشاہ تھے. اب میں انکار کرتا ہوں کہ نہیں تھے تو وہ پروف کریں گے, وہ بکس لا کر دکھائیں گے ہے نا. لیکن بکس میں وہ میں اگر ان سے پوچھ لوں کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے تمہارے پاس صحیح ثبوت کہاں ہے تو وہ ثابت نہیں کر سکتے. یہ سامنے کی بات بتا رہا ہوں. دنیا کی لیکن ہسٹری بولتی سن ہے لو ٹکر کہ مسجد اقصی نہیں بنی ہوئی تھی. پوری دنیا کی ہسٹری بولتی ہے, ساری دنیا بولتی ہے بھائی. یا اللہ پاگل ہو گئے بولنا پاگل ہو گئے. اور ہمارے پاس جو ہے نا آتھینٹک حدیث ہے. ہم ہر حدیث کے وہ بتا سکتے ہیں کہ کیسے کس نے سنا, کہاں سے سنا, ساری باتیں ساری ڈیٹیلز ہیں اس میں کوئی. اسی لیے تو تم جیسے ایکس مسلم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے, سمجھ رہے ہو. یہ تو یہ جیسے यार आवाज इनकी कितनी एको हो रही है यार. یار مجھے رونا آ رہا ہے یار, مجھے رونا آ رہا ہے یار. ایڈم سے یہ سازش جو ہے نا آج کے زمانے کی نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہے. ایکس مسلم کی بات جو ہے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی تھی. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. یہ آیت ترجمہ دیکھ لینا بھائی. تو یہ سازش تھی, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا صحابہ اکرام نے زبانی یاد کی اور پھر صحابہ نے تابعین کو دیا تھا. او صاحب ایک منٹ رکو. جی جی جی
یہ بخاری جو ہے یا مسلم ہے، رکو ان کو میوٹ کرنا پڑے گا، یہ بخاری مسلم یہ تو بعد کے زمانے میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل اس بات کی ممکن ہے کہ انہوں نے یعنی ان کو جو ڈسکرپشن بعد میں ملا تھا اس حساب سے انہوں نے حدیثوں میں ایڈ کیا. میں آپ سے پھر سے بیک ٹو سیم کوشچن پہ جاتا ہوں کہ ایک انسان ٹریول کر کے 7ویں آسمان کو کراس کر کے جہاں پہ آکسیجن بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا ایک انسان ٹریول کر کے جا سکتا ہے 7 آسمان کو کراس کر کے؟ کیا آپ اس کو ثابت کر سکتے ہو؟ یار اس میں آکسیجن ماسک بھی ہوگا نا گھوڑے میں؟ نہیں ہاں، ان دیکھو سے ہی پوچھ لیتے نا. سائنس سے اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو ہاں اس حساب سے تو پوری دنیا میں کوئی بھی مذہب ایگزسٹ نہیں کرتا. نہیں، سائنس باقی کا اپنی چھوڑ دو، جگہ ہے. آپ کا مذہب سائنس نہیں کے حساب صرف سے اسلام پر وار کرو. ثابت. رکو یار پلیز، ابھی یہ صحیح چیز پہ آئے ایک دم. یعنی کیا آپ مانتے ہیں کہ سائنس کے حساب سے آپ کے رسول اللہ نے جو اتنی بڑی بونگی ماری ہے ادھر وہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے؟ وہ بالکل سائنس کے حساب سے غلط بات ہے، کیا آپ مانتے ہو؟ نہیں بھائی سائنس وہاں تک پہنچا نہیں ہے نا. ساحل ہاں؟ سائنس نہیں پہنچا وہاں تک یار. نہیں سائنس سے تو ابھی آسمان کو ڈھونڈ نہیں پایا, ابھی تو چاندی اچھا تک مطلب آپ پہنچا. یہ کہہ رہے ہیں، ایک منٹ سائنس وہاں تک نہیں پہنچا، مطلب آپ یہ کہہ رہے کہ ایک انسان یعنی ایک انسان وہ آسمان کے اوپر جا کے اسپیس میں جا کے بنا آکسیجن کے، یہ ایک ایسا انسان تھا جو بنا آکسیجن کے بھی زندہ رہ سکتے تھے، آپ یہ کہنا چاہ رہے؟ اور ان کے پاس جو ان کا جو گھوڑا تھا وہ ٹائم پہ ایک ایسا گھوڑا مطلب پرجاتی اس کی چلتی تھی جو آسمان پہ گھوڑا یا گدھے کے بیچ میں جو تھا تو وہ آسمان کے اوپر اڑ سکتا تھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے؟ وہ گھوڑا دنیا کا گھوڑا نہیں تھا, وہ جنت سے لایا گیا تھا. اچھا ایک اور بات بتا دے, وہ حضرت سلیمان کے پاس اورن کھٹولا بھی تھا نا؟ حضرت سلیمان کے بارے میں اتنا معلوم نہیں ہے, قرآن میں نہیں اتنا نہیں بتایا گیا. قرآن میں لکھا ہوا ہے نا اورن کھٹولے کا, کہ جس کے اوپر وہ اپنی ساری کیا؟ فوج رکھ لیتا تھا, لکڑی کا اورن کھٹولا. ہاں وہ تو تھا نا, عرش تھا, ہاں تخت. تخت اورن کھٹولا. لیکن وہ تخت کتنا بڑا تھا؟ اتنا بڑا تھا کہ اس کے تمام فوجی, تمام اونٹ, تمام گھوڑے اور تمام لڑائی کا سامان سب کچھ اس کے اوپر آ جاتا تھا. اتنا معلوم نہیں ہے, اتنی تفصیل سے ہم کو قرآن شریف میں نہیں بتایا گیا. اچھا کتنی تفصیل میں بتایا گیا؟ ہاں وہ ایک تخت تھا جس میں وہ سوار ہوتے تھے, اڑتے تھے. اڑتے ہوئے جاتے تھے ہیں, یعنی کہ ایروپلین حضرت سلیمان کے زمانے میں تھا؟ نہیں ایروپلین تو لوگوں کا بنایا ہوا ہے نا, وہ اچھا اللہ کیا کی تھا؟ طرف سے دیا. اچھا وہ اللہ کی اللہ طرف کی سے دیا. طرف سے دی. اچھا اچھا ایروپلین اللہ والا ایروپلین تھا وہ. سیم ڈے ڈیلیوری گھوڑا تھا وہ براق جنت سے جو آیا تھا. ارے بھائی حضرت سلیمان اڑتے پھر رہے ہیں بھائی, یہ بھی تو دیکھیں آپ, اورن کھٹولا حضرت سلیمان کے پاس بھی تھا. سلیمان تو کا, ایکس لیکن ہندو صاحب, وہ جو ایکس ہے نا, ہندو صاحب دیکھیے آپ اتنے بڑے یعنی مذاقیہ بن گئے ہیں, مذاق مطلب آپ کا اتنا بڑا مذاق بن رہا ہے ابھی اور آپ کے اسلام کا, کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو فیری ٹیل میں آپ جو وشواس رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, آپ کا عقیدہ ہے, یہ اس بات کی علامت ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگ اندھ وشواسی ہے. یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی, کوئی انسان نہیں تھا جو اڑتا تھا یا آسمان کے چکر جو ہے وہ لگا کے آسمان کے اوپر سپیس میں جا کے آ سکتا تھا. یہ آپ لوگوں کو اس لیے آپ کو ماننا پڑتا ہے کیونکہ آپ کا اسلام یہ کہتا ہے, آپ کے رسول اللہ نے یہ کہا ہے, اس لیے آپ اندھ وشواسی ہو, اور اسی وجہ سے ہم اسلام کو قبول نہیں کرتے. میرے بھائی آپ سے پھر کبھی بات ہوگی دوسرے کسی ٹاپک پر جو نہیں باقی ایک مومن منٹ ہیں, میں بتا دو, کیونکہ سنو میری تو بات, ایک بات 1 بجے ایک دو 1 بات بجے بتا. تک مجھے سٹریم کلوز کرنا ہے, کیونکہ زیادہ لمبی سٹریم میں میری حالت خراب ہو جاتی ہے, بیک پین سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو ہم زیادہ لمبی سٹریم نہیں کر سکتے. میں ایک دو آپ نے لاسٹ بتا بات دوں. رکھنا ہے, پھر ہم باقیوں کو موقع دیں گے. دیکھیے ساحل بھائی, آپ لوگ جیسے جو ہے نا پوری دنیا والوں کو آج سے نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے, بلکہ ان سے آگے سے بھی آپ لوگ دنیا والوں کو سمجھا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ سب خدا وغیرہ کچھ نہیں ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ پوری دنیا والے خدائی پر یقین کرتے ہیں,
चाहे किसी भी धर्म नहीं, की शक्ल में। अरे खुदा और पे करने दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज ही प्रीति मैम बोल रही थी, उनके स्ट्रीम में गया था, यार सब मुसलमान बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट ये लोग भी इस्लाम को कबूल करते हैं। अबे पता नहीं यार, आप लोगों की कोशिश कब झूठ कामयाब डाली है होगी। तुम यार। आप ये लोग देखो, की ये फ्री कोशिश। थिंकर, ओ जनाब, ये जो फ्री थिंकर अभी बैठे हैं ना, ये भी आप ही की तरह किसी जमाने में आकर इस्लाम का दिफा करते थे। हमारी स्ट्रीम देखा उन्होंने, उनकी आंखें खुली और इस्लाम से बाहर निकल गए। तो जल्द ही हम उम्मीद हमको करते मालूम हैं। नहीं कि वो मुसलमान है। यार रुको यार जरा, जल्द ही हम उम्मीद करते हैं कि आपकी भी आंखें खुलेंगी और आप जो दिफा करने आए हैं, एक दिन आप हमारे साथ बैठ के किसी दूसरे कट्टर मोमिन या अंधविश्वासी मोमिन का आप जहन खोलेंगे। हमें ये उम्मीद है, आप इंतजार करते रहिए। हमको देख के कई सारे लोगों का जहन खुलता है, एक दिन आपका भी खुलेगा, कोई मुश्किल नहीं। रोजाना आमिर भाई की इसमें स्ट्रीम में रोजाना मुसलमान हो रहे हैं, तो क्या अरे आप फिर कबूतरगिरी शुरू, फिर कबूतरगिरी शुरू। कबूतरगिरी नहीं, आज ही देख रहा था कई एक्स फिर हिंदू है, कबूतरगिरी शुरू। तो क्या वजह है? आप लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं और आज से नहीं 1400 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओ मुसलमान भाई, बढ़ते जा रहे हैं। क्या वजह? आपको अपोस्टेसी रेट पता है क्या? कौन से, कभी पढ़ा है, कभी इंटरनेट खंगाला है, कभी प्यू रिसर्च पढ़ा है? अपोस्टेसी रेट कितना है, गल्फ में कितना है, वेस्ट में कितना है, कभी पढ़ा है आपने? धड़ल्ले से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। यार ईरान वो का सब हाल देखा है? ईरान का हाल देखा है? मर रहे लोग, लेकिन तुम्हारे इस्लाम को पैर के नीचे रौंद रहे हैं। हिजाब इस्लाम का जो सुनो हिस्सा है, सुनो 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 भाई, आपको पता है? ये हकीकत रेट जो सुनना है है। ना, ये रेट जो है मक्का से शुरू हुआ था, लेकिन आज तक खत्म नहीं हो रहा। अरे खत्म अपोस्टेसी हो रेट जाएगा, कोरोना को भी नहीं, खत्म होने टाइम लगा ना। टाइम नहीं है साहिल भाई, कोशिश तुम्हारी कोरोना को भी बेकार। खत्म होने टाइम लगा ना। सुनो मेरी बात एक्स हिंदू साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। कोरोना को भी खत्म होने टाइम लगा, उस तरीके से टाइम लगता है कोई कोई बुराई को खत्म होने के लिए। हो रही है, काम चालू है, लोग छोड़ रहे हैं। इसको आप देखिए, ईरान का हाल देखिए क्या है। इसी तरीके से गल्फ में इतनी जबरदस्त तरीके से इस्लाम को छोड़ा जा रहा है, बल्कि वहां के जो हुक्मरान है, उन्होंने इस्लाम की बैंड बजा के रखी है। इस्लामिक देश होते हुए, मुसलमानों का देश होते हुए, उन्होंने अपने अंदर इतना चेंजेस लेके आया कि भाई अब वहां पे दुबई पे मंदिर बन रही है, सऊदी में पब खुल रहे हैं, थिएटर खुल रहे हैं, औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत है। तो ये खुद हुक्मरान भी इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, बल्कि अब एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी तरीके से इस्लाम को छोड़ दिया जाएगा, यानी नाम का इस्लाम रह जाएगा। तो एक सिंधु साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, टर्की में क्या अपनी हुआ बात था? रखे। टर्की में इस्लाम सब एक्स मुस्लिम थे, फिर सब मुसलमान हो गए। अब यार फिर एक्स मुस्लिम हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। एक तो सर दर्द हो रहा है आपके माइक से, नेक्स्ट टाइम जब आइएगा तो जरा माइक सही करके आइएगा। आई एम गुड कह रहे हैं, देयर इज एन एंडिंग टू एवरीथिंग इंक्लूडिंग इस्लाम। एग्जैक्टली।